Assalamu alaikum and good afternoon. Hope you are fine and doing well. We have a training today from IQA. It's from QEC Department Quality Enhancement Cell of Greenwich University. I have attended this IQA training a month before in Salim Habib University from Sindh HEC. This IQA training is all about the internal quality assurance of a university. So let's start the training. Yes. So the objectives of the IQA training are the integration of the digital QA system in our university. So first of all, I want to clear the concept of IQA. That what IQA is. That IQA is the internal quality assurance, that we are maintaining the quality of education at certain standards and certain levels. Then the capacity building for QEC staff and the faculty members. There's the whole university is work with the stakeholders like you, the students and the management. So we are actually working on the quality of the system, the academic system, the management, the enhancement of the faculty members. And in this workshop, I focus on the pre-standards. The pre-standards are actually the standards that have been provided by the HEC and enhancing the faculty and the students' involvement in quality assurance. So IQA in higher education institutions, it's basically is the internal quality assurance. That is a framework initiated by the Higher Education Commission of Pakistan. It's actually providing a journal standard and the benchmark for all the universities to follow the standards, and it ensures the university maintain academic and administrative quality standards, and it's basically regards in the continuation of the improvement in higher education institutions, HEIs of public sector and the private sector. It's established in the universities and often called the quality enhancement cells. So this is basically the system of the quality enhancement cell. So the working mechanism of IQA units. So we have the internal quality assurance and they cannot work alone. The QEC cannot work alone in a system. QEC is actually maintaining the enhancement of all the systems that runs smoothly, and QEC cell is actually providing support to the faculty members. We are the faculty members, we are the HODs here. So it's our duty to maintain the standards of IQA or QEC that have been provided by the HEC. So what it's all about, हम क्या करते हैं इसमें कि previously we were working on SAR reports. Of almost all we have done on the SAR reports. Now the SAR reports have been improved, and then it's self-programmed review for the effectiveness and the enhancement pre for IQA. यानी कि अभी 2025 से प्री जो है वो प्री स्टैंडर्ड्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं. देयर आर 8 स्टैंडर्ड्स ऑफ प्री. हम इन पे बाद में बात करेंगे. अभी सार्स का नया नाम जी, सार्स का जो है वो नया नाम है. सार्स एक्चुअली सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं जो हम एक यूनिवर्सिटी के पैरामीटर में हम अपनी यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हम फॉलो अप करते हैं. एंड नाउ इट हैज़ बीन अपडेटेड टू न्यू स्टैंडर्ड दैट इज़ प्री. एक्चुअली ये बेसिकली सार की ही रिपोर्ट है जो कि अपडेट होके वो हमें प्री की फॉर्म में आई है. इसको मज़ीद प्रिसाइज़ कर दिया गया है, और जो इम्प्रूवमेंट्स हमें सार में नज़र आई थी उन इम्प्रूवमेंट्स को यहाँ प्री में इनकॉर्पोरेट किया गया है. कुछ स्टैंडर्ड्स कम किए गए हैं, कुछ इन स्टैंडर्ड्स को मज़ीद ज़्यादा जो है वो क्लियर किया गया है. सो what it's all about, it's a peer review and the external assessment. Basically the faculty members all together they work on the pre-standards and they make a review of the system, administrative system and the academic system within the university parameter. Then it has been checked by the QEC. Then the peer review, that means external assessment,
some external evaluators came to our university and they give the suggestions and they incorporate the improvement within our university dimensions. So basically it's work on the feedback and the reporting that हम उन्हें वो यूनिवर्सिटी में जो हम रिपोर्ट्स बनाते हैं उसकी वैल्यूएशन होती है और उसके बाद उसकी रिपोर्ट बन के फिर हमारे स्ट्रैटेजिक प्लान में वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जाती हैं. There is an improvement plan or the strategic plans. So what is self program review for the effectiveness and the enhancement is actually so every department is actually making a self assessment report for its departmental work. इसमें हमारे curriculum, हमारा vision, mission, हमारे goals, हमारी faculty, हमारे students, हमारे surveys, everything incorporate होती है. So लेट्स डिस्कस द प्रोसीजर. हम इसमें 6 प्रोसीजर से गुजरते हैं कि हम जिस प्रोसीजर पे हम प्री को फॉलो अप करते हैं. यू ऑल गेट द नोटिफिकेशन फ्रॉम द वीसी. आप सबको नोटिफिकेशन मिला था वीसी का. देन उसके बाद हम लोगों ने अपने अपने डिपार्टमेंट में पीटी बनाए और उसके बाद पीटी के बाद अब हमारा काम जो है स्टार्ट हो गया. दैट इज़ अबाउट द प्री स्टैंडर्ड्स पे काम करना. एंड देन जब हम उसको अपनी असेसमेंट रिपोर्ट बना के फिर अगर हम उसको जो है अपने IQA में या अपनी QEC में सबमिट करवाएंगे. दैट हैव बीन इवेल्युएटेड बाय द AT assessment team and this assessment team might be from our university and it also might be from the external reviewers as well. Then the IQA office shall submit an executive summary on the AT findings to the vice chancellor. यानी इसके बाद जो हमारी AT की जो भी रिकमेंडेशंस होंगी वो हमारी वाइस चांसलर को या रेक्टर को हमारे सबमिट की जाएंगी और उसके बाद फिर हम जो है उसके शॉर्ट्स पे या जो है उसके स्ट्रैटेजीज़ पे उन वीकनेसेस पे काम करेंगे. एक्शनेबल प्लान देंगे, स्ट्रैटेजीज़ देंगे और फिर दिस प्लान मस्ट इंक्लूड 80 फाइंडिंग्स एंड द करेक्टिव एक्शंस टू बी टेकन, असाइनमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द टाइम फ्रेम फॉर सच एक्शंस. ये हमारा Annex 1 है. Now come to the Annex 2. That is Annex 2 is the some of the standards and the guidelines that have been provided from the HEC. कुछ स्टैंडर्ड्स हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं HEC की तरफ से जिनको हमने फॉलो अप करना है और इन प्रोग्राम्स में तकरीबन 8 स्टैंडर्ड्स हैं जिन पे हमने काम करना होता है. स्टैंडर्ड 1 है हमारा प्रोग्राम मिशन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स. हमें एक्सपेक्टेड आउटकम्स इंडिकेटर्स प्रोवाइडेड हैं. कुछ हमें स्टैंडर्ड्स प्रोवाइडेड हैं जो कि बहुत एक तरह से हमारे वो मिनिमम क्राइटेरिया है हमें अपने प्री स्टैंडर्ड्स को जमा कराने के लिए. और उसमें अगर आ जाते हैं तो हमारी इंस्टीट्यूशन मिशन स्टेटमेंट है, हमारे प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स हैं, PEOs हैं. PEOs और PLOs हमारे जो हैं थोड़े से कन्फ्यूजन का सबब बनते हैं. PEOs मीन द प्रोग्राम एजुकेशनल आउटकम्स. They are basically the outcomes that have been assessed after some year of the graduation. हम PEOs को हम कुछ अरसे बाद असेस करते हैं कि हमारा ग्रेजुएट्स जो है वो आफ्टर सम टाइम वो किस जगह पर बेस करता है. PLOs जो है वो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम हमें इमीडिएटली हमें उनको फाइंड आउट करना होता है. Then the strategic plan to achieve the program objectives. We have some objectives. We have the PLOs, we have some objectives and we are working on these PLOs and the objectives. So हम उस स्ट्रैटेजिक प्लान में जो हमने प्रीवियस SAR से हमने ड्राइव की हुई होती हैं हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं. स्ट्रैटेजिक प्लान बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं और फिर उस स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर हम काम करके मज़ीद इम्प्रूवमेंट हम पैदा करते हैं. द मेजर्स ऑफ द जी जी इसलिए मैंने सर शॉर्ट्स का मैंने नाम लिया भी नहीं है यहाँ पर. सिर्फ हम लोग एक्चुअली कॉमनली यूज़ करते हैं तो इसलिए मैंने उसको ठीक है जी. सो मेजरमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम देखे जाए तो हमें इसमें क्या क्या इंडिकेटिव एविडेंसेस प्रोवाइड करने हैं. उसमें हमें असेसमेंट रिपोर्ट्स प्रोवाइड्स करनी है, सर्वेज प्रोवाइड्स करने हैं. शॉर्ट्स हैं सर कह रहे हैं कि वो टूल्स में कन्वर्ट हो गए हैं तो तब ऑब्वियसली जी वो हम उसको दोनों को सेम ही कंसिडर करते हैं जी. Sir, most welcome. And the actions plan what we have derived from our recommendations. The second one standard is the curriculum design and the organization. The expectation outcome indicators जो हैं वो हमारे the curriculum must be consistent and support the programs document objectives. So it is compulsory के
the HODs must have all the curriculums, the scheme of studies within their custody. They are the basic custodians of the program, curriculum and the scheme of studies. हमारे HODs जो हैं वो बेसिकली वो कस्टोडियंस हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जब हम QEC की बात करते हैं और विद इन दिस यूनिवर्सिटी हमें ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि हमारे यहाँ कस्टोडियन नहीं मिलता कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सम डॉक्यूमेंट्स। सो कुछ डॉक्यूमेंट्स हम सब HODs के पास लाजमी होने चाहिए। एज एन HOD वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें प्रोवाइड करें, जिसमें हमारे पास पूरा अपने डिपार्टमेंट का जो है हमारा ओवरव्यू, और मैं आप लोगों से भी शेयर करूंगी एक डिपार्टमेंट का हमारा जो है प्रोग्राम रिव्यू का एक फॉर्म है, वो डॉक्टर उस्मानी ने मुझसे शेयर किया था और उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें और सारी पॉलिसीज़ मुझे उसमें आराम से मिल गई थी। यानी कि जी जी सिंध मेडिकल कॉलेज वाले नहीं है सर, ये सलीम हबीब वाली है ये। जी जी, तो बेसिकली करिकुलम का तमाम कोर्स आउटलाइंस, फैकल्टी डाटा, ये सारी चीज़ें HODs के पास कंपलसरी होनी चाहिए इन अ सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज इन द हार्ड कॉपी। यानी कि एट अ टाइम हमें ये सारा डॉक्यूमेंट जो है हमें ऑन एंड ऑफ चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें, अभी हम राइट पे काम कर रहे हैं, फिर हम NBAC पे काम कर रहे हैं, NCA एक्रीडिशंस पे काम कर रहे होते हैं हम, तो हमें ये सारा डाटा जो है वो विद इन आर कस्टोडी हमें चाहिए होता है। करिकुलम में जब करिकुलम की बात करें तो हमारे करिकुलम जो है इट मस्ट बी अलाइंड विद HEC स्टैंडर्ड्स। HEC हैज़ प्रोवाइड सम स्टैंडर्ड्स, अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी हम सबके पास है, और अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी भी हमें एटलीस्ट इतनी हमें एक दफ़ा उसे गो थ्रू ज़रूर हो ताकि हमें उसकी बेसिक जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें पता चल सके कि हमें क्या हम उसमें रिविजन्स कर रहे हैं। 2023 में वो रिवाइज हुई थी अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी, सो उसको हमें फॉलो अप करके तमाम कोर्स आउटलाइंस को बनाना होता है। द करिकुलम मस्ट सेटिस्फाई जनरल इलेक्टिव्स है, कोर कोर्सेज हैं हमारे, और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज जो हैं वो HEC की और एक्रेडिशन की बॉडी को हमें फॉलो अप करना ज़रूरी है। ऑब्वियसली हम यहाँ पे बहुत सारी एक्रेडिशन पॉलिसीज़ बॉडीज़ को फॉलो कर रहे हैं। एजुकेशन में हम NAACTE को फॉलो कर रहे हैं, बिज़नेस में हमारे पास NBAC है जिस पे इंशाल्लाह हम जा रहे हैं, अब काम कर रहे हैं, एंड होप कि इंशाल्लाह कि दिस ईयर वी विल गेट द NBAC एक्रेडिशन एज वेल। कंप्यूटर साइंस में NCE है, और इसी तरह की सारी एक्रेडिशन बॉडीज़ जो हैं ये हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती हैं और हमें अपनी करिकुलम को उन सब से अलाइन करना है। Then develop the oral and the written communication skills and conduct feedback surveys each semester for each course from students and faculty. सर्वेज के लिए हमारे पास जो है वो प्रोसीजर जो है वो हमें पता है, हम सबको पता है कि हम ऑनलाइन पोर्टल पे वो सर्वेज जो है तकरीबन 7 सर्वेज हमारे यहाँ हर सेमेस्टर में डेवलप किए जाते हैं। उन वो जो है जो सर्वेज हैं वो हमें सरशराज से मिल जाते हैं, और लेकिन वो पूरे हर डिपार्टमेंट के हेड को वो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर वो मिलते हैं, और यही वाला डाटा जो है वो हमारे लिए इन सब में हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। अच्छा, दैन द स्टैंडर्ड 3 इज द सब्जेक्ट स्पेसिफिक फैसिलिटीज़। दैट यहाँ पे हमें कोर्स आउटलाइन से बात करते हैं और सब्जेक्ट स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ पे बात कर रहे हैं, और यूज इन द प्रोग्राम अंडर असेसमेंट एंड मैनुअल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड द इंस्ट्रक्शंस, benchmark with similar departments in reputable institutions to identify shortcoming in the laboratories। यानी यहाँ पे हम वही उन स्टैंडर्ड्स को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं और जो हमारे पास HEC की तरफ से प्रोवाइड हो रहे हैं, और जो हमारे डिफरेंट एक्रेडिशन बॉडीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने उनको इनकॉर्पोरेट करना है इसमें। नेक्स्ट स्टैंडर्ड 4 इज़ रिलेटेड टू द स्टूडेंट काउंसिल फैसिलिटी इन आवर यूनिवर्सिटी। That modules must be offered with sufficient frequency and the number of students to complete the program in a timely manner। यहाँ पे हम the number of students, उनकी लिस्ट, ये सब हमारे पास जो है अपडेट होनी चाहिए। यानी with the start of any of the semester we have the accurate number of the students, कितने पास आउट हुए, कितने को हम जो है उनसे हम यानी कि जो ड्रॉप कर रहे हैं,
जो भी है वो पूरा डाटा है वो हमारे पास जो है वो अपडेट होना चाहिए. Modules in the major area of study must be structured to ensure the effective interaction between students, department and the teachings, and the guidance on how to complete the program must be available to all students. इसके लिए हम ओरिएंटेशन करते हैं और उसके हमारे पास प्रूफ होते हैं ओरिएंटेशन के. हमारे पास पूरे स्टूडेंट मैनुअल्स हैं, फैकल्टी मैनुअल्स हैं और हमें इनको फॉलो अप करना होता है. और यही चीज़ें फिर हमारी इंडिकेटिव एविडेंसेस में जाते हैं आगे जब हम प्री पे काम करेंगे. इस आगे जी स्टैंडर्ड 5 है टीचिंग फैकल्टी एंड द स्टाफ एंड इट्स ऑल अबाउट द एज एन HOD यू हैव द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, CV रिकॉर्ड and the list and the CV record and the expertise of any of the faculty member that is been serving over here. इसी तरह faculty professional development and program evaluation process and survey teaching staff to measure motivation and the job satisfaction. We have to produce some of the surveys for our faculty regarding these options. हम इन पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला from the next semester हम इस पे इंशाल्लाह ताला इनको हम जो है अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे. अच्छा स्टैंडर्ड 6 इज इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज एंड द प्रोसेस कंट्रोल. इट्स ऑल अबाउट द पॉलिसीज वी आर हैविंग. वी हैव अ लॉट ऑफ पॉलिसीज. वी हैव द पॉलिसी मैनुअल, वी हैव एग्जामिनेशन पॉलिसी, वी हैव एडमिशन पॉलिसी, असिस्मेंट पॉलिसी, डिसिप्लिन पॉलिसी, एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी. तो ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं ये हमारी ऑलमोस्ट सारी ही हमारी वेबसाइट पे अपडेटेड हैं और जिसे हमें गो थ्रू होना ज़रूरी है क्योंकि वंस वी विल गो थ्रू ऑल दिस पॉलिसीज़ तो हमें इन सब पे काम करना बहुत आसान हो जाएगा. यानी हम इससे सोच रहे होते हैं कि यार ये वाली पॉलिसी है या नहीं है और हम ये पढ़े बगैर, सॉरी टू से मैं खुद इसमें शामिल थी कि हम पढ़े बगैर जो है हम कह रहे थे कि यार ये वाली पॉलिसी नहीं है और जबकि वो एग्जिस्ट करती है. तो हमें एक दफ़ा उन पॉलिसीज़ से गुजरें ज़रूर. वो सारी पॉलिसी मैनुअल है. आई थिंक इट विल टेक 10 to 15 minutes टू ओवर थ्रू ऑल दीज पॉलिसीज़ ताकि हमें पता हो कि कौन सी पॉलिसी मिस है और अगर हमें यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट आती है इसी पॉलिसी की तो हम उसके ऊपर काम कर सकें और उसको हम आगे फर्दर जो है उसको हायर अथॉरिटीज़ तक हम जो है इसको कंडक्ट कर सकें. यस इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड द फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास. एक्सपेक्टेशन आउटकम्स जो हैं यस इट्स अबाउट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. तो वी आर प्रोवाइडिंग द ऑल द डाटा और ये ऑलमोस्ट हमारा जो डाटा है वो सारी चीज़ें कॉमन होती हैं. यानी ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में या अगर हमें फाइनेंस से अगर हमें रिलेटेड चीज़ें ऑडिट जो है रिपोर्ट्स चाहिए तो ये सारी चीज़ें हम सब के पास एट ए टाइम मौजूद होनी चाहिए. तो आई हैव वर्कड ऑन द सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ QEC OneDrive. तो काफ़ी सारा डाटा हम उस पर हम जो है वो जमा कर चुके हैं और वो इंशाल्लाह ताला उसकी एक्सेस जब है हमारा वंस वी विल हैव द कम्प्लीटेड डाटा तो हम उसकी एक्सेस इंशाल्लाह ताला तमाम HODs को देंगे ताकि उनके पास एट ए टाइम वन फिंगर के ऊपर ये सारा डाटा जो है वो इनकॉर्पोरेट हो. अच्छा जी इंस्टीट्यूशनल जनरल रिक्वायरमेंट्स में भी हमारे पास जो है वो सारे जो है ये रिसर्च इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स है और द सिलेक्शन एंड द इसमें सारी पॉलिसीज़ और हमारी सारी जो है वो मैनुअल्स भी आ गए हैं. और यहाँ पे मैं बात करूँगी कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स की कि हमारे कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का जो डाटा है वो भी हमारे पास जो है HODs के पास एक रिज़र्व होना चाहिए. एटलीस्ट द प्रीवियस जो साल गुजर चुका है वो डाटा हमारे पास कम से कम इनकॉर्पोरेट हो ताकि जब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े स्टूडेंट्स के लिए या हमें अपने किसी भी फॉर्म के लिए क्योंकि ये ऑलमोस्ट ये डाटा हमें हर जगह चाहिए. रिसर्च का डाटा या हमारी अपनी रिसर्च को फैकल्टी की रिसर्च को रमीज़ वो इसको अपडेट कर रहे हैं और वो आप लोगों के पास भी आई थिंक रमीज़ काफ़ी सारे तो मेरे ख्याल से अपडेट कर चुके हैं. तो जो अपना अपडेट नहीं कर सके तो प्लीज़ उसको वो OneDrive पे अपडेट कर दें ताकि हमारे पास वो सारा डाटा जो है वो सेव और सिक्योर हो. इस तरह स्टूडेंट के हवाले से भी हमें वो रिसर्च उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है. और हमारे जो कैपस्टोन प्रोजेक्ट हैं बेसिकली हम लोग मीडिया है, बिज़नेस है, हमारे पास कंप्यूटर साइंस है. तो कोशिश करें कि हमारे जो कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडस्ट्रियल लिंकेज के साथ डेवलप हों ताकि हम उनमें हमें अच्छा एक फीडबैक मिल सके ताकि जब हमारा आगे एलमनाइज जो हमारे सर्वेज होते हैं और हमारे आगे जो हम PEOs की बात करते हैं तो हमारे वो PEOs जो हैं वो हम उनको अचीव कर सकें. नेक्स्ट ओके सो हियर वी हैव सम रिव्यूअर्स रुब्रिक. मैं आप लोगों से प्री की डॉक्यूमेंट जो है शेयर करूँगी तो उसमें से आप इन सब चीज़ों से गुजरिएगा. एनेक्स 1 इज़ ऑल अबाउट द
basic the things we are providing to them, and the Annex 2 is actually related to all the standards which we have to follow, और उन standards पे हमें अपनी यूनिवर्सिटी के indicative evidences provide करने हैं जी. So when you start writing a program, SAR or self-assessment report or the pre-report, what we have to do that the brief description of your program, of your department, of your program, then your courses, उसमें हम वो आप सब लोग उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, उसी प्रोसेस को मज़ीद हमें रिफ़ाइन करके काम करना है. द ट्रैक रिकॉर्ड इन मैनेजिंग द क्वालिटी एंड द स्टैंडर्ड्स, हमें उस तमाम 8 स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप करते हुए हम उन स्टैंडर्ड्स के इंडिकेटिव एविडेंसेस प्रोवाइड करेंगे और हम उसके साथ ही इन पे काम करते जाएंगे. परसेप्ट एंड द पैराग्राफ रेफरेंसिंग एंड द एविडेंसेस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमें उसी जो है प्रोवाइड करनी है उसमें. और हमारी जो प्री है वो बहुत प्रिसाइज कर दी गई है. वो हमारी प्री रिपोर्ट जो है आई थिंक इट्स नॉट मोर देन 30 पेजेस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ये मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, आप लोगों से ग्रुप में इंशाल्लाह मैं शेयर करती हूँ ये प्री स्टैंडर्ड्स. और फिर उसके बाद हम जो है एक छोटी सी एक हमारी प्रैक्टिस है. सो वी हैव द एक्टिविटी दैट इज़ रिलेटेड टू द प्री स्टैंडर्ड्स कंप्लाइंस चेकलिस्ट. जो आपके पास फाइल है उसमें आपके पास एक ये वर्कशीट है इसमें. सो नो इट्स फॉर एवरी वन. तब आप डिपार्टमेंट, आप इंग्लिश डिपार्टमेंट के हैं तो आप इसको फॉलोअप करेंगे. सेकेंड सर, ये तो एक आई थिंक वो इसने मेरे ख्याल से ना ये नहीं तो कंप्लाइंस वो था ये जी जी हाँ ये वाले जी जी सर ये वाले जी 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 ये प्री स्टैंडर्ड कंप्लायंस चेकलिस्ट है सबके पास. जी 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 HEC प्री स्टैंडर्ड कंप्लायंस चेकलिस्ट है. ये आप लोगों ने रिकॉर्ड जमा कराना है. जी 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 सो जी हाँ अच्छा. रिगार्डिंग योर द डाटा यू हैव, आपके पास जो डाटा है अपने अपने डिपार्टमेंट का, तो उससे अगर आप जस्ट इमेजिन कि आपके पास क्या क्या डाटा सेव है. ये सिर्फ एक आपके पास चेकलिस्ट है जिसको आपने स्टेटस देने के इट इज़ प्रोवाइडेड और नॉट, और नहीं है तो हमें इस पर कितना काम करना है. ठीक है, इट्स अ चेकलिस्ट दैट हैज़ बीन जी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ इंडिकेटर्स हैं. तो इस चेकलिस्ट पे आपने काम करना है अपने अपने डिपार्टमेंट के हवाले से. सर आपके पास है ना जी? नहीं नहीं QEC में नहीं आएंगे. QEC अब आपकी जी जी सर जी ये अब आप नहीं एक्चुअली देखें, अब आप लोगों को ना QEC के मामले में ना आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि QEC से जो आपको चाहिए होता है वो आपको फिर वन ड्राइव पे मिल जाएगा. वो जी मैं वन ड्राइव पे सर सारा डाटा हमने सेव कर रहे हैं ना. हो रहा है आधा तो ज़्यादा हो चुका है डाटा QEC पे. जी सर हाँ जी अभी भर के देना है आप लोगों ने. आपके पास कौन कौन सी चीज़ों की एक्सेस मौजूद है ये हमें इसमें प्रोवाइड करना है. पढ़ें इसको, तो इसमें जो है वो सिर्फ आपको जो है जी जी बस ये सर नो है और जो भी हमारे पास जी नहीं नहीं आसिफ जी जी नहीं ये तो हमारा फीडबैक फॉर्म है. जी जी आप साइकोलॉजी की हैं, यू आर द ओनली वन अक्लॉती ऑफ साइकोलॉजी. जी जी वो 3 चीज़ों को डिप्लॉयमेंट, अप्रोच एंड रिजल्ट. नहीं अभी ट्रेनिंग कहते नहीं ये वाला हमारा होगा ना. स्टार्टिंग तो वहाँ से होगी इस पूरे प्रोसेस की. वो नहीं बताया नहीं वो नहीं सर. जी जी बस इसको आप अपनी इनपुट है ना अपना नाम डाल करके बस इसको आप पढ़िए. इसमें से जो जो चीज़ें आपके पास लग रही हैं वो उस पर आप करते जाएं. मिस मैं किसी डिपार्टमेंट के साथ एकेडमिक मैं इसलिए बता रही हूँ. मैं दूसरी कोर्स पढ़ाती बाकी तो सारे वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, तो इसलिए आई एम सेइंग दैट ऐसे कुछ नहीं है इसमें, बस सिर्फ एविडेंस है येस और नो है. पढ़ेगी तो माशाल्लाह आपको तो चीज़ों का पता है ना. आप ये मुझे दें करिकुलम अलाइनमेंट है. चलें फिर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस कर दें. अटेंडेंस यहाँ पे थी ना, ये अटेंडेंस जी
क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, ये हम जैसे इसका हमें चेकलिस्ट देंगे। सीरियस हो जाएगा। ये मैपिंग एंड रूब्रिक असेसमेंट ये कहाँ पे आएगा? ये आउटकम बेस हमारी लर्निंग हमारी जो है, ऑब्वियसली सारी चीज़ें हमारी जो है इसमें एविडेंस हमारा वो है ना, इसमें क्या नाम है इसको, सही यार ये जमा करवाना ही है। यस और नो, यस और नो करेंगे। हाँ ठीक है जी। चाय के साथ सिर्फ चाहिए ना, पूछ लेंगे हाँ सिर्फ चाय, कॉफ़ी पूछ लेंगे सिर्फ कितने लोग हैं, किससे क्या चाहिए। कॉफ़ी नहीं होनी है, मैं चाय का बुलाऊँ। हाँ ठीक है चाय, मुझे नहीं पता चाय लिया फिर पूछ तो कितने लोग पियेंगे ताकि एक्स्ट्रा ना बने। बात बोलो बोलो पूछ लो, पहले इनकी तरफ पूछ लो इन लोगों से, पूछ लो किसको चाय चाहिए। ठीक है एक चीज़ करो सबके लिए, वरना अपने आप ये तो सही हमारा है ही नहीं, तो मैं इसको यस कैसे कर सकती हूँ? स्टूडेंट टीचर रेशियो, हमारे पास टीचर ही नहीं है साइकोलॉजी का। कर सही है ना, नो करो ना, नो करो। कर दूँ। आपने ग्रीन फॉर्म नहीं, मैंने ग्रीन फॉर्म नहीं कहता, मैंने मेल की थी, मैंने निशान साहब को निशान साहब की तो कोई मेल नहीं है, मैंने खुद की थी। खैर अब नहीं करो तो छोड़ दो, ड्रॉप इट, कोई मसला नहीं है। नहीं वो तो मैं चाय लेकिन कर दो, अभी ख़त्म होने वाली है, अभी से भी लोग। चाय करवा देता हूँ। ये सोसाइटी से ना सोसाइटी तो हमारी है ना, एजीसी हमारी पूरा काम करी ना इसमें। सो वी विल हैव द आइडिया कि हमारे पास कौन सा जो है डाटा, जी वो तो आप कल भी फर्स्ट आई थी, कौन सा डाटा जो है वो हमारे पास जो है वो प्रोवाइड है, और ताकि उसके बाद फिर हम उसकी एक्सेस आप लोगों तक जो है वो कर देंगे। ये लीजिए, अब मैं जा रही हूँ। अभी ऑफिस वो भी भरना है ना, क्या नाम है एक ही दिया था बहन तुमने। यार, ये हमारा अमजद जो है ना, उससे सर वो मैं आपको, उसने फीडबैक फॉर्म में, उसने कहा था अक्लमंद से कि फीडबैक फॉर्म भी डालना। सर ये फीडबैक फॉर्म ये भी सर फाइल में रखिए भी।